Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. And a very warm welcome to Ignited Thank you. Minds. Today we are pleased to have with us Tafeem Firdosha, who has secured rank 27 in the recent results of JKS exam. Today again I'll be asking set of questions to our guest, and I hope this session will be very insightful for everyone. First of all, I would like to thank our guest for taking the time to be with us today. Thank you so Thank much, you. sir, for joining us My here pleasure. today. Thank you so much. Before we begin, we would like to know more about you. Sir, kindly give us a brief introduction about yourself. My name is Tafeem Firdosha. I come from Karanagar area of Srinagar district. I did my initial schooling from Tyndall Biscoe School, Srinagar, up to class 10th. उसके बाद मैंने अपना 11th 12th I did it from Stepping Stone School in Chandigarh. After that I joined Islamic University of Science and Technology, Avantipora. I did my BTech in Electronics and Communication Engineering from there, which I completed in 2017. After that, in my final semester, I decided there were 3-4 career options at that point of time. I felt that I was a little inclined towards this during my final year. So I thought that I should pursue civil services as a career option in my final semester. And since then, I was preparing for civil services exams. In my previous attempt at JKPSC, I had reached till the interview stage in Combined Competitive Examinations 2018. However, I was not able to qualify in that year, and this was my second attempt at JKPSC. And Alhamdulillah, I have qualified it finally Mashallah. this year. My parents were in government service only. They retired recently. My father was in engineering department and my mother was working in education department. राइट सर, राइट सर, आपने एज कहा कि आप पहले आपने बीटेक किया हुआ है, देन आप सिविल सर्विसेज में आए हो. जी. सर, आपने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, और जो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज किया? एज स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं टाइमिंग के रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है. कुछ ज़्यादा आवर देते हैं पढ़ने पे, कुछ कम देते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप To बताइए. begin with, I would say since the exam this is a 3-stage exam process. It comprises of the prelim stage, the main stage and the interview stage. So एक holistic exam preparation strategy होना right from the day one itself is a very important factor that a candidate has to look into. अब nature of examination 3 different stages का differently है. For example, if we talk about the prelim stage, it is of an MCQ type, objective type of an examination. उसके बाद this objective knowledge is being tested at the main stage and you have to attempt 7 to 8 written papers. उसके बाद हमारा personality test होता है, which again checks us whether how our personality has developed over right since our childhood and particularly during the phase itself. So एक integrated preparation strategy होना, I believe, is very important if a candidate is interested in joining the services. So I feel the prelims stage के लिए आपके 5-6 subjects होते हैं. It begins with there are subjects like polity, economics, geography is there. There is modern history. There is history which comprises of ancient, medieval, modern part. Then in the art and culture part, and in the science and technology part, we have also the environment part. So whatever is happening around us in our neighborhood, we have to be basically very much interested उन चीज़ों में. तो simultaneously and gradually over the period of time one develops, जब ये inquisitiveness पहले होना बहुत important है इस एग्ज़ाम में, and gradually फिर once one adapts to this, इसी का classification main stage में it gets divided into paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4. Apart from this, we are also having an essay paper which checks us how a candidate is able to put his thoughts on a particular aspect, on a particular topic. तो उसके अलावा we are also having an optional subject. We are being provided with 22, I believe, optional subjects, out of which we have to choose one. तो वहाँ पे we are having the flexibility to choose as per our own choices. तो वो एक फैक्टर रहता है which is very decisive also in our preparation and eventually in qualifying the examinations. उसके अलावा personality test also comprises of 250 marks, which is roughly around 1/8 of the total weightage. Candidate has to keep in mind that prelims is just a qualifying nature, and the mains and interview stage eventually add up to which finally decide your rank. तो आपका final selection is basically determined by the mains, which is a written exam, and the personality test. So preparation strategy accordingly एक candidate को देखना है कि what suits him and how much is being required at each stage. तो वो एक काफ़ी important factor है. Regarding second question, which is the time management. I believe initially this examination has that a threshold point has to be attained by a candidate in each of the subject that he is opting for. For example, if I talk about economics,
हर सब्जेक्ट का एक अपना पल्स है, वो एक पल्स और एट द सेम टाइम एक थ्रेशोल्ड नॉलेज अटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन वन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है. आई बिलीव qualitative study is very much important, but roughly 6-7 months is a time to reach that threshold stage. So exam process as such is of minimum, it is of 2 years, 1 year of preparation strategy and 1 year of the exam process. तो वो सब चीज़ें देखकर एक candidate has to decide his own strategy, but he should be very well aware and well versed with the syllabus part. Deciphering this syllabus is very critical in the very first phase itself. So वो समझना बहुत important है. वहाँ पे आपके टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज देखना, हाउ दे अप्रोच, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रीड करना, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. राइट सर. सर आपने कहा कि आपको ऑप्शनल में चॉइसेस दिए जाते हैं जिसमें आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है. सर हमें आप ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या था और आप स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर टिप्स कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है तब जाके वो वाइज डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग चूजिंग देयर ऑप्शनल पेपर. एग्जैक्टली. सी मैम, वी आर हैविंग, जैसे कि मैंने बोला 22 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है हमारे पास, आउट ऑफ विच वी हैव टू चूज 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. इसमें वी आर हैविंग ए वाइड वैरायटी. वन कैन चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. इसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स भी आते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स भी आते हैं, कॉमर्स के भी आते हैं, अकाउंटेंसी के भी आते हैं, मैनेजमेंट के भी आते हैं. तो वी आर हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी. अब इसमें एक वंस अ कैंडिडेट डिसाइड्स टू परस्यू दिस ऑप्शन, तो ही हैज़ टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है नेचुरली. फिर आपको देखना है वो इंटरेस्ट अगर है आपको किसी सब्जेक्ट में, हाउ वेल यू आर एबल टू पुट इट इन रिटन फॉर्म. तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी प्रीलिम स्टेज में नहीं है, दैट इज ओनली इन योर मेन स्टेज. तो वहाँ पे मेन स्टेज में रिटन फॉर्म में हाउ यू पुट अप डायग्राम्स, हाउ यू पुट अप फ्लो चार्ट्स, दैट बिकम्स वेरी वाइटल for getting a good score in the optional subject, because at the end of the day, apart from the interest, you have to also think कि you have to also analyze and observe कि wherein I can score more. तो वो चीज़ें बैलेंस देखना, एक फेयर अमाउंट ऑफ बैलेंस देखना. उसके बाद यू हैव टू ऑल्सो लुक फॉर दी अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल इन द एग्जामिनेशन. इस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट का मटीरियल मार्केट में अवेलेबल है, व्हाट आर द टॉपर्स, एक ट्रेंड भी आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है अपार्ट फ्रॉम योर ओन इंटरेस्ट. तो वो चीज़ें देखकर यू डिसाइड योर ऑप्शनल. फॉर मी, my optional subject in this year's examination was anthropology. Earlier I had also, basically one has to shortlist 3-4 optionals based on choice. उसके बाद आपको थोड़ा सा I would recommend candidates, aspirants कि firstly आप पहले कुछ टाइम पे you just observe and shortlist 4-5 optional subject जिसमें आपका इंटरेस्ट है. फिर थोड़ा 8-10 दिन 2-3 हफ्ता थोड़ा पढ़ो. तो फिर टॉपर्स की वीडियोस देखो, हाउ दे आर अप्रोचिंग दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए दैट you are having particular interest and strength in this particular optional. वो एक काफ़ी important factor बन जाता है eventually आपके selection में. तो anthropology, I took up anthropology, there were various reasons. तो एक individual ऐसा नहीं है कि एक particular option से ही आता है. तो we are having selections this year from political science, from anthropology, from sociology. अब कभी कभी किसी ऑप्शनल में ट्रेंड में it is a little difficult to score with, but that is a very subjective thing and that keeps on changing every year. So interest primarily and your strengths, working on your strengths, I believe is very crucial, and it would suffice for the entire process as such. Right sir. Sir, as you said कि ऑप्शनल खाली मेंस में होता है, तो एक स्टूडेंट को ऑप्शनल पढ़ना कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रीलिम्स के दौरान या उनको प्रीलिम्स तक रुकना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए ऑप्शन? Exactly. Here I would like to bring in a point. Every candidate starts at a different stage. So ideally what is to be done is that before 1 year before the prelims of the next session, you have to start somewhere around 9 to 10 months, ideally before the year in which you are basically planning to appear. So एक 10 month का अगर आप प्रिपरेशन टाइम ले रहे हैं एक एग्जाम का या एक साल का ले रहे हैं, तो आफ्टर 1-2 months ऑफ फाउंडेशन जब आपका जनरल स्टडीज़ में कवर अप हो जाएगा, तो आई बिलीव आफ्टर 2 to 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ GS, वन कैन शॉर्टलिस्ट एंड स्टार्ट हिज ऑप्शनल सब्जेक्ट. देयर आर ऑल्सो कैंडिडेट्स जो अपना प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल डिसाइड करते हैं, बिकॉज इन JKPSC वी हैव टू सबमिट द ऑप्शनल after the prelims, after the candidate qualifies the prelims. However in UPSC ये चीज़ differently होता है. प्रीलिम्स में हमें इन द प्रीलिम्स स्टेज इटसेल्फ वी हैव टू सबमिट द ऑप्शनल. तो वो एक चीज़ UPSC और JKPSC में डिफरेंस है. बट आइडियली आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग समवेयर एटलीस्ट 6 to 7 months बिफोर द प्रीलिम स्टेज. यू हैव टू कवर अप योर एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ योर ऑप्शनल, ताकि आप
एक प्रीलिम्स के बाद अगर आपका 20-30% रहता होगा तो यू कैन कवर अप, बिकॉज यू विल गेट अ कैंडिडेट गेट्स अराउंड 3 to 4 months आफ्टर द प्रीलिम स्टेज, तो रफली 6 to 7 months, बट इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months ऑफ प्रिपरेशन फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट एज सच। राइट सर। सर जैसे कि हमें पता है कि अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे उसमें लगभग 15 कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, या CSAT में 3 पढ़ने पड़ते हैं, ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ता है। सर आपने अपनी जर्नी में कैसे इन जैसे कंपोनेंट्स 15 है या 3 है, बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपने हर सब्जेक्ट में कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, और अगर आपको लगता था कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक है या आपका कोई वीकर एरिया है, आपने उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया? देखिए मैम, इफ़ वी लुक एट द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू रीड, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हर कैंडिडेट का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का इंटरेस्ट हिस्ट्री में नहीं है, या उसको ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज थिंग्स, बिकॉज कुछ चीज़ें इन दिस एग्जाम यू हैव टू ऑल्सो मेमोराइज सर्टन पार्ट। तो वो चीज़ आपको ये पहले ही जब आप सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज इकोनॉमी, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज पॉलिटी, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट, बट आपको फिर एक स्टेज के बाद व्हेन यू अटेन दैट थ्रेशोल्ड नॉलेज, आपको यू हैव टू इंटर रिलेट करके वो सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। तो इनिशियली टू बिगिन विद अ कैंडिडेट माइट फाइंड डिफिकल्टी, बट अगेन हेयर इन द फैक्टर लाइज, आर यू एबल टू बेसिकली स्ट्रैटेजाइज प्रॉपरली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजिकली, तो मेरा एक ऐसा रहता था कि मैं पहले एक मैक्रोवेव लेता था एक सब्जेक्ट का, फिर आई यूज टू डिवाइड दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं एक मैक्रो व्यू डेवलप करके एक क्रोनोलॉजिक हिस्ट्री डेवलप करता था, फिर जाके मैं माइक्रो टॉपिक्स कवर अप करता था। उससे आपका एक एडवांटेज ये भी रहता है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से बाइफरकेट कर पाते हैं और आप अपना रूटीन का टाइम टेबल प्रॉपरली सेटअप कर पाते हैं। रफली इट टेक्स अराउंड 20 to 25 days फॉर एन कॉम्पोनेंट टू बी कंप्लीटेड। फिर ये स्ट्रेंथन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेयर इन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज थोड़ा रिविजन का पार्ट क्रूशल बन जाता है, तो वो एक अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वन कैंडिडेट स्टार्ट्स विद पॉलिटी और ही स्टार्ट्स विद इकोनॉमी इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, it is very important that after 1.5 month he revises the same things time and again. And here यहाँ अभी के टाइम पे क्या है, there is a huge availability of sources on the social media और Google पे है, अवेलेबिलिटी मटेरियल का बल्क में है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को दे हैव टू बेसिकली डिवाइस एक प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड करना है कि हम अपना सोर्स लिमिटेड रखें, लेकिन कंसाइज भी एट द सेम टाइम, कंसाइज भी हो, लिमिटेड भी हो, बट एक आपका फाउंडेशन अच्छा क्रिएट हो। तो लिमिटिंग द सोर्सेज एंड रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स बिकम्स अ लिटिल क्रूशल इन दिस एग्जाम, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है कि मेरा सब्जेक्ट कवर अच्छे से हो रहा है। राइट सर। सर जैसे कि हमें पता है कि ये जर्नी मिनिमम तो 1 year की होती है जी। या किसी का कोई अटेम्प्ट रह जाता है या फिर उनकी जर्नी मोर देन 1 year बन जाती है, किसी का 3 साल, किसी के इवन मोर देन दैट हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी में एक एस्पिरेंट कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकता है थ्रू आउट हिज जर्नी और हर जर्नी, तो फोकस्ड कैसे रह सकता है? यहाँ पे मैम आई वुड लाइक टू एम्फसाइज a fair balance has to be maintained between the personal life and between your studies. तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक नोशन है कि इस एग्जाम में यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग फॉर 12 hours, 13 hours, 14 hours. फॉर मी इट वाज लाइक आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड 6 to 7 hours रेगुलरली, बट फिर जब एग्जाम प्रोसेस जब नियर अप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम स्टेज आ जाता है, देयर इन अ कैंडिडेट कैन इंक्रीज दिस 6-7 hours, ये ऑटोमेटिकली 10 hours भी हो जाता है। बट एक अपना एक क्लोज नेट फ्रेंड सर्कल रखना इंपॉर्टेंट है, एक सोशलाइजेशन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली होता क्या है, व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस एग्जाम इज दैट प्रीलिम्स, मेन स्टेज एंड फाइनली व्हेन इंटरव्यू स्टेज तक है, तो वी आर काइंड ऑफ बहुत कैंडिडेट्स अलूफ हो गए होते हैं अपने सोशल सर्कल के साथ। तो वो पर्सनालिटी स्टेज पे अगेन इन बहुत कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी में दिक्कत आ जाता है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट फ्रॉम द गो इटसेल्फ। तो एक फेयर बैलेंस मेंटेन करना आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवेंचुअली उससे आप साइकोलॉजिकली भी फिट रहते हैं और यू आर इन एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अच्छे से याद भी कर पाए। बिकॉज अगर एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कैंडिडेट कुछ रिमेंबर नहीं तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। राइट सर। सर एज वी ऑल नो कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए।
आपने खुद को कैसे अप टू डेट रखा करंट अफेयर्स के साथ? आपने न्यूज़ कैसे रिलेट किया, लाइक आपने उन चीज़ों को कैसे कवर किया इस एग्जाम? देखिए मैम, अभी ये एग्जाम है, the nature of examination for each component, it comprises of the static part as well as the dynamic part. तो exam process or the level of difficulty is increasing every day. तो dynamic part पे lot of emphasis has to be done because current affairs से काफ़ी questions, even if the foundation or the basic genesis of the question or the background of the question will be from the static, but उसमें एक dynamic वाला part add up हो जाएगा. तो उसलिए current affairs is very important and significant, be it the prelim stage or the main stage or the interview stage. तो आप एक कैंडिडेट व्हाट ही और शी कैन डू इन फॉर द करंट अफेयर्स इज दैट अ बेसिक न्यूज़पेपर, एक या दो न्यूज़पेपर फॉलो अप करना है. फॉर इंटरव्यू स्टेज यू कैन रेफर टू 2 न्यूज़पेपर्स सो दैट आपका कंटेम्प्रेरी और एक मल्टीपल ओपिनियन हो ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट. आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को पढ़ पाए, बट दैट इज फॉर द इंटरव्यू स्टेज. टू बिगिन विद यू कैन refer to only one newspaper. You can start, a candidate can start with a recommended Hindu या Indian Express होता है, he can start either of the two. अब उसमें ये चीज़ दिक्कत रहती है कि कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से हमारा टाइम बहुत it takes us a lot of time in covering up the newspaper. फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टॉक अबाउट द हिंदू, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम इस चीज़ को पढ़े कैसे, इस चीज़ में ही उनको 6 घंटे निकल जाते हैं. तो उस चीज़ के लिए आप कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे बैलेंस मेंटेन करे? What I used to do in this, what I used to do in this for the current affair was that मैं बेसिक न्यूज़पेपर का पढ़ रहा था. टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल्स हैं जो शॉर्टलिस्ट करके देते हैं आपको कि what all news items are to be read from the Hindu itself, although they might miss out certain things. But उससे आपका ये रहता है कि 10 or 12 news articles are to be read from the Hindu or 10 or 12 news articles are to be read from the Indian Express. तो आपका half of the homework is being done by the institutes itself. तो काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो I won't name any particular, but there are a lot of channels. तो वो शॉर्टलिस्ट करके एक कैंडिडेट न्यूज़पेपर के टाइम को लिमिट कर सकता है 45 मिनट्स टू 1 hour और 1.5 hour. तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड ही कैन ऑल्सो मेक सेल्फ नोट्स. डिफरेंट कैंडिडेट्स हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. किसी को लगता है कि उनका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है नोट मेकिंग में, तो दे कैन कीप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ऑनलाइन नोट मेकिंग आज के टाइम पे लॉट ऑफ एप्स आर अवेलेबल, तो वैसा भी करते हैं. और कुछ कैंडिडेट्स इसी न्यूज़पेपर पार्ट को सप्लीमेंट कर देते हैं मंथली मैगजीन से. तो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. सम कैंडिडेट्स जिनको न्यूज़पेपर थोड़ा बल्की लगता है टू रीड विद, दे वॉच द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ एनी गुड यूट्यूब चैनल पे वो रेफर करते हैं. तो वो एक पार्ट भी आप कैंडिडेट कैन चूज, बट वन हैज़ टू इंश्योर कि एटलीस्ट एक आप अपना कंसिस्टेंट सोर्स रखें जहाँ से आप अपना न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, ताकि. और एट द सेम टाइम वन थिंग आई वुड लाइक टू एड अप हियर इज दैट टेस्ट सीरीज, मतलब यू हैव टू बेसिकली रेगुलरली टेस्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस. इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, तो अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे, तो एक MCQ करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. आई वुड रिकमेंड दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ. अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के उस चैप्टर वाइज MCQ बुक्स आई वुड रिकमेंड हेयर फॉर ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटी पढ़ रहा है तो वो पॉलिटी की MCQ करे, कोई इकोनॉमी पढ़ रहा है तो इकोनॉमी की MCQ करे. तो ये रेगुलर टेस्टिंग की वजह से you get confidence also, and you are able to identify the weak areas कहाँ पे है. तो testing is very important, be in the prelim stage or the main stage. तो वो चीज़ है. राइट सर. सर एट लास्ट एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव, जो कि करंटली अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स है, जो भी अभी करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम? वन एडवाइस आई फील इन दिस जर्नी इज दैट सिंस for me also it took around 4 to 5 years of preparation, I would recommend here thoda sa you have to keep faith in yourself. I would advise parents who are watching this show that please have confidence in your children, and children who are preparing, aspirants who are preparing, so that एक आप अपने आप में faith रखिए कि hard work won't go waste. मे बी अगर ये ना क्लिक हो, कुछ और लाइफ में क्लिक होगा, बिकॉज दिस नॉलेज, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट सिविल सर्विस प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करता है, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द नॉलेज इटसेल्फ. तो बट एक ये भी फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस रखना इस एग्जाम प्रोसेस में और अपने हार्ड वर्क में, ये बिलीव रखना आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में ये ना हो तो और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी, मेनी डोर्स विल ओपन अप इन द कमिंग टाइम. तो वो फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड एडवाइस एवरीवन हु इज़ वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप दिस फेथ, unrelenting faith in yourselves. Right, sir. Thank you so much, sir, for being here today. Welcome, Thank you so welcome, much, sir. Thank you.